Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Our today's topic is calculations in calculations in table. So this is our today's topic. Calculations in table. Calculations in table is our today's topic. अब प्रैक्टिकली ये हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो MS एक्सेल ओपन करते हैं, सॉरी MS वर्ड। Okay, now so first of all create one table. अब टेबल हम क्रिएट करते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किए and see here the number of column is 5. Number of column is 5 and the number of row is 6. Click on OK. Now the first one is name. Second name of here is the English. Next cell the name is Hindi. Next cell it is math. Next cell it is suppose computer. Now the name is suppose Abhigyan. Abhigyan. Now the another student name is suppose Ayushi. Another student is Kanishka. Another student is suppose Arpit Jalan. Arpit. Another one is Shivam. Likewise, so the marks student score by Abhigyan in English is suppose 95. In Hindi 99. In math suppose 88. In computer suppose 55. 98. Now Ayushi marks is 87. In Hindi 67. In math 82, in computer 85. Now come to English. For the Kanishka the marks in English is suppose 48. In English it is 91. In Hindi it is 92. In computer it is 93. Now come to the Arpit. Marks in the English is suppose 75. In Hindi it is 72. In math it is 74. And in computer it is 75. Now come for the Shivam. The marks of Shivam in English is suppose what? 83. In English 83, in Hindi 84, math 85 and computer is 89. Okay. Now 89. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? Here the name of the topic is what? Calculations in table. अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश का जो भी टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लास्ट में। हिंदी में क्या है वो मार्क्स दिखाना चाहता हूँ टोटल। मैथ में टोटल मार्क्स क्या वो दिखाना चाहता हूँ नीचे में। कंप्यूटर में जो भी टोटल मार्क्स है वो नीचे में दिखाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रो ऐड करते हैं। राइट क्लिक किए, इसमें इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट रो बिलो करेंगे। इंसर्ट रो बिलो। तो हियर I will write total mark. Total mark. Here I want the total mark in English. English में total marks कितना आ रहा है वो मुझे calculate करना है. So we have now in order to calculate the total calculate करना है English में, तो ये कैसे calculate करेंगे? So for that click on this layout tab. इस layout tab पे click करेंगे and here is the in the layout tab here is the option data group है। layout tab पे क्लिक करेंगे, टेबल ग्रुप, रो एंड कॉलम ग्रुप, मर्ज ग्रुप, सेल साइज ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, डेटा ग्रुप। तो डेटा ग्रुप में हम जाएंगे। लेआउट टैब में क्लिक करके डेटा ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फार्मूला पे क्लिक करेंगे। फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अब मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल मार्क्स इन इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है इक्वल टू सम एबोव। इक्वल टू सम एबोव इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट द सम। हमको ये सारे का सम निकालना, इसके लिए फॉर्मूला इक्वल टू सम एबोव होता है। क्लिक किए ओके पे। नाउ सी हियर टोटल मार्क्स इन इंग्लिश इज 388। नाउ click here. Now I want the total marks in Hindi. So same here, click on layout tab, click on formula,
click on formula within the data group. So click on here. Now equal to sum above. Now we are able to get the sum here. Here also you want the sum. Click on formula equal to sum above. Click on OK. Now here also you want the total. Click on formula equal to sum above. Click on OK. So in this way we are able to get the sum of the marks in total marks in English, total marks in Hindi, total marks in math, total marks in computer. Now, so if you see, we are able to calculate the total marks in English, in Hindi, in math and in computer. So here we have performed what? Calculation. Calculation हमने perform किया और इस calculation में मैंने अगर total निकालना है तो how we can calculate the total? So formula is equal to sum above, equal to sum above. Now, so this formula is for what? Calculating the sum. Sum calculate करना है उसके लिए. Now the next one is requirement को समझने का कोशिश कीजिए. इस टेबल को मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी कर दिया और नीचे आया सी एंटर किए और कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी, ठीक है. और इस वाले अब यहाँ से देखिए ये सारे वैल्यू को रिमूव करना है. नाउ हियर रिमूव दिस वन. आई वांट द एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स. अब यही टेबल है, सेम टेबल. हियर आई वांट द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, हियर आई वांट द एवरेज मार्क्स इन हिंदी, हियर आई वांट द एवरेज मार्क्स इन मैथ. अगर मुझे एवरेज मार्क्स कहाँ कैलकुलेट करना है? कंप्यूटर में. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट? So what is the way for calculating the average marks? For calculating the average marks. Now see here, everyone. Here I want the average. So same. Click on layout tab. Here is the formula option in the data group. Data group के अंदर formula जो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए equal to sum above. So मुझे sum नहीं करना, मुझे क्या करना है? Average चाहिए, मुझे average चाहिए. So for this we have to write equal to average, equal to average, and here you have to write above, above. Now see, click on OK. We are able to get the average. Here we are able to get the average marks in English. Now here also I want the average marks in English. You click on layout tab. Within the layout tab, go to data group. Within the data group, click on formula. Now here also change. This is what default है, ठीक है ना. डिफॉल्ट फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज मीन्स सम, बट आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज. सो हियर वी हैव टू राइट above equal to average above, equal to average above. Now click on OK. Now here also we are able to get the average marks in Hindi, average marks in Hindi. I want the average marks in math. So same here, click on formula. Same here also, write equal to average, equal to average above, equal to average above. Now click on OK, click on OK. Now we are able to get the average marks in math also. Now the next, in the computer I want the average marks. So click on formula. Here also we have to write what? Equal to average, equal to average, equal to average what? Above, equal to average above. Now click on OK. Now we are able to get the average marks in computer. So in order to calculate what? Average, average calculate करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू एवरेज above, इक्वल टू एवरेज above. Now the next one, see here. अब मैंने यहाँ पे क्या निकाला? टोटल निकाला, एवरेज यहाँ पे निकाला. अब मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स. सपोज ये टेबल है, इसको कॉपी किए और यहाँ पे ये बार बार मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ? इससे क्लैरिटी रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अब मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो कैसे निकलेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्क्स. नॉट रिमूव दिस वन also remove, this one also remove, not this one also remove. Now you want the marks in what? Maximum marks in English. So click on layout tab.
इन द लेआउट tab क्लिक ऑन द फार्मूला ऑप्शन विद इन द डेटा ग्रुप के अंदर फार्मूला पे क्लिक करके चेंज द फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम? सो मैक्स इज द फार्मूला. मैक्स इज द फार्मूला. मैक्स ऑफ एबो. मैक्स ऑफ एबो. मैक्स ऑफ एबो. ओके. नाउ क्लिक ऑन एबो. Click on OK. So we are able to get what? 95. See here, 95 is the maximum marks here. Now I want the maximum marks in Hindi. Click on formula. Now here you have to write max of above. Max of above. Click on OK. We are able to get maximum marks in Hindi. 99. Now here also I want the maximum marks. Maximum. So click on formula. So remove this one. Max marks also we are able to get. Max of above. Max of above. Now click on OK. So we are able to get the maximum marks in math. I want the maximum marks in computer. So click on formula. Now here equal to max of above. So click on OK. We are able to get the maximum marks in computer. So if you want to calculate the maximum marks, in that case we have to use the formula max of above. Okay, this is the formula. Now the next one I want to calculate the minimum marks. Minimum marks मुझे calculate करना है. So इसे टेबल को सेपरेट टेबल लेते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की जगह मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए. मिनिमम मार्क्स यहाँ से इसको रिमूव करेंगे. ये सारे वैल्यू को रिमूव कर देंगे. मैक्सिमम मार्क्स है, इसको रिमूव किए. आई वांट द मिनिमम मार्क्स. सो क्लिक ऑन लेआउट टैब. इन द लेआउट टैब विद इन द डेटा ग्रुप क्लिक ऑन फार्मूला. नाउ हियर चेंज द फार्मूला. दिस इज द डिफॉल्ट फार्मूला. नाउ for calculating the minimum, the formula is equal to mean of above. Now click on OK. So we are able to get the minimum marks in English. Now I want to calculate the minimum marks in Hindi. So click on this formula within the data group of the layout tab. Now change the formula. What is the formula? Mean of above. So close this, click on OK. We are able to get the minimum marks in Hindi. In the same way, click on the formula. Here, change the formula mean of above. Now we are able to get the minimum marks in math also. I want to calculate the minimum marks in computer. So same mean of above. So we are able to calculate the minimum marks in computer also. Now the next one is I want to calculate the total number of students. अगर मुझे total number of students calculate करना है तो वो कैसे calculate करते हैं. Now see here, टेबल को कॉपी किए और here I want the count of the students. Now see here, total count of the students in English. Now layout. So here the formula is count. Count करने का है मुझे, उसके लिए formula है count of above. Click on OK. 5. Here also click on formula and change this formula to count above. Now click on OK. Now here also click on formula, change the formula equal to count above. Now click on OK. Here also formula, click on here, change the formula from sum to change the function only. This one is what? Function. Overall is what? Formula. Now click on OK. Now fine. So in this way we can calculate the what? We can calculate the count of the students. So in English different subjects. Now the next one is a round function. Use of round function. Round function का क्या use है वो. Now see here, everyone. So this is one table. Now rounded marks.
Now see, remove this one. The whole value removed. Now what is the use of this round? Now suppose here the marks in English is 95, 95.5, here 94.4, here 94.3, here marks 93.2, here 0.4, here 0.1, like that the marks is there. Suppose this 2.5. Now here 3.5. Come to here 4.5. Come to here 55. And here suppose 39. Now the marks of the students in the subject is like that. Now I want the marks मुझे चाहिए. कैसे मुझे मार्क्स चाहिए? राउंडेड फॉर्म में चाहिए. अब देखिए यहाँ पे लेआउट टाइम में गए, फॉर्मूला में गए, अगर इक्वल टू सम एवोक करते हैं तो मार्क्स कितना आता है? टोटल मार्क्स 389.2. बट आई वांट द मार्क्स राउंडेड टोटल मार्क्स मुझे अगर चाहिए. राउंड फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पर? अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल जो भी आया 389.2, सो अब इसको राउंडेड फॉर्म में मुझे ये मार्क्स चाहिए, तो उस केस में यूज कर सकते हैं. राउंड फंक्शन, राउंड का यूज फिर अनदर वे, राउंड का यूज दूसरा समझिए कि राउंड, मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स चाहिए. मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितना रहा? 95.5, लेकिन मुझे राउंडेड मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तो 95 होगा या 96 होगा, ऐसे मैं चाहता हूँ. सपोज हियर मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, सो 99.4 होगा, लेकिन मुझे राउंडेड फॉर्म में चाहिए, 99 चाहिए. सो फॉर दैट वी विल यूज द व्हाट? राउंड फंक्शन. नाउ सी हियर, अब मुझे राउंडेड मार्क्स चाहिए, राउंडेड मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, राउंडेड मैक्सिमम मार्क्स आई वांट. तो मैक्सिमम मार्क्स मुझे राउंडेड फॉर्म में चाहिए. नाउ सी हियर, अब इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? तो मुझे राउंड करना है, राउंड मैक्स चाहिए मुझे, मैक्स. अगर सी हियर यहाँ पर अगर हम लोग इक्वल टू मैक्स एवोक करेंगे तो मुझे क्या होगा? इक्वल टू मैक्स एवोक करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? राउंडेड मार्क्स चाहिए, मुझे राउंडेड मार्क्स चाहिए. तो इसके लिए अब इसको हम सपोज, अब देखिए ये क्या करेगा, ये हम लोग अगर लिखेंगे फंक्शन, तो इस फंक्शन से हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स जो है हमको क्या चाहिए? राउंडेड फॉर्म में चाहिए, राउंडेड फॉर्म में चाहिए. तो मेरे पास एक फंक्शन है राउंड फंक्शन इक्वल टू राउंड लिखेंगे, इक्वल टू राउंड और मैक्स ऑफ एबोव, इक्वल टू राउंड मैक्स ऑफ एबोव. और राउंड हमको कितना प्लेस के बाद करना है? तो राउंड 0,0 करेंगे यहाँ पर, क्लिक ऑन ओके. नाउ सी द मैक्सिमम मार्क्स इज 96. यहाँ पे देखिए अब ध्यान से कि 95.5 मैक्सिमम मार्क्स है, सो राउंडेड हुआ तो 96 हुआ. कैसे कैलकुलेट करें इसको समझिए. हियर मैक्सिमम मार्क्स इज 99.4. अब मुझे राउंडेड मार्क्स चाहिए, कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम मार्क्स निकालना है हमको, राउंड करना पड़ेगा. राउंड करना है, किसको राउंड करना है? मैक्सिमम मार्क्स को. अब राउंड फंक्शन का 2 इनपुट होता है, राउंड फंक्शन का 2 इनपुट होता है. फर्स्ट इनपुट क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. तो राउंड फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे? मैक्स, हमको चाहिए क्या? सम कैलकुलेट करेंगे. सम पहले आएगा, उसके बाद ही तो हम लोग राउंड करेंगे उसको. तो सम करेंगे किसका? एबोव का, सम ऑफ एबोव. सम ऑफ एबोव पहले ऐसे ही लिखते थे ना, तो ये लिख दिए. अब इसको राउंड करना है कितने डेसिमल प्लेस तक? तो राउंड करना है टू 0 डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेस. नॉट सी हियर एवरीवन, कॉमा 0, क्लिक ऑन. नाउ सो आई हैव यूज व्हाट? टोटल मार्क्स को मैंने राउंड कर दिया. वेट, मैक्सिमम मार्क्स को हमको राउंड करना है, सो आई विल यूज हियर राउंड ऑफ मैक्स ऑफ व्हाट? मैक्स ऑफ एबोव, कॉमा 0 एंड क्लोज दिस. Now click on this. So maximum marks is 99. Here 99.4 is the maximum mark, but after rounding it is 99 because 99.4. So 4 is less than what? 5. ये जो है आफ्टर पॉइंट क्या? 4 है, which is less than 5. So it is rounded to 99. If it is greater than equal to 5, अगर या तो ये जो डेसिमल के बाद 5 हो या मोर देन 5 हो तो राउंड हो जाएगा नेक्स्ट वन में. डेट मीन्स ये 100 हो जाता अगर यहाँ पे इस तरह से 6 रहता तो, ठीक है, या यहाँ पे 5 भी रहता तो ये
100 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है। ओके, नाउ कम टू हियर, आई वांट द मैक्सिमम, सो चेंज दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। हमको क्या करना है, मैक्सिमम मास जो आएगा उसको राउंड करना है। तो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्स ऑफ एबोव लिखते हैं। अब मैक्स ऑफ एबोव लिखे तो ये क्या हुआ, ये एक हमारा फंक्शन हुआ, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड फंक्शन लेंगे, ठीक है ना, राउंड फंक्शन लेंगे, और राउंड फंक्शन को इनपुट क्या दे देंगे, मैक्स ऑफ एबोव, और हमको राउंडिंग कितना चाहिए, 0 डिजिट तक चाहिए, ठीक है ना, इसलिए 0 दिए। नाउ क्लिक ऑन हियर, 92.25 is here the maximum mass, so which is rounded to, round किए 0 place तक, so 92. So in the same way we can calculate the rounded value in the computer also. So in the same way we can calculate the round of what, max of above comma 0. Now see here, click on this, so we will get the rounded value here. So हम लोग इस तरह से राउंड कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग राउंड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द रिमेनिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस इन टेबल। नाउ टिल नाउ टुडे आई हैव डिस्कस सम कैलकुलेशंस इन टेबल में मैंने डिस्कस क्या किया, हाउ टू कैलकुलेट द सम, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज, हाउ टू कैलकुलेट द मैक्स, हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ एबोव। So some more topics are still pending, that after that count, use of count of above, and another one is equal to round of first parameter comma second parameter। फर्स्ट पैरामीटर मतलब राउंड ऑफ फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कॉमा मीन्स 2 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। सो 2 पैरामीटर अगर हमको मैक्सिमम निकालना है, तो सी यार, अगर मैक्सिमम निकालना है, जो अगर हमारा सम अगर कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट किया, अगर सम को राउंड करना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ना, हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, जो हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, राउंड ऑफ लाइक दिस। अगर हम इसको 0 प्लेस तक राउंड करना है तो लाइक दिस। ऐसे ही हम लोग इक्वल टू राउंड ऑफ, अगर हमको एवरेज जो मार्क्स आया उसको राउंड करना है तो एवरेज को कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, 0 प्लेस तक राउंड करना है तो 0। दिस इज द फॉर्मूला। ना सेम इक्वल टू राउंड, अगर मुझे मैक्सिमम को राउंड करना है तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, राउंड ऑफ मैक्स ऑफ एबोव कॉमा 0 मीन्स 0 डेसिमल प्लेस तक मुझे चाहिए। इक्वल टू राउंड ऑफ, अगर मुझे मिनिमम को राउंड करना है तो इक्वल टू, यहाँ से ये कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, सी हियर कॉमा 0। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। सो काउंट को राउंड नहीं कर सकते हैं, काउंट को राउंड करने का कोई मीनिंग नहीं है। काउंट मतलब ये एग्जैक्ट देता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट देगा 4 5 3। सो राउंड का इसमें कोई यूज नहीं है। सो राउंड जो है हम लोग सम, एवरेज, मैक्स और मीन के केस में यूज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।